खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। खुदा का फजल हमेशा आप पर रहे। और आज खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं एक नए दिन के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में दिया, और एक नया हफ्ता हमारी ज़िंदगियों में दिया। और खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ़ और उसकी सताइश करें कि वो भला है और वो हर रोज़ हम पर फजल करता है और हमें ज़िंदगी और ज़िंदगी की सांसें अता करता है, क्योंकि ज़िंदगी और ज़िंदगी की सांसें उसी की तरफ से बख्शिश और नेमत हैं। और आज फिर जब हम खुदावंद के हजूर में हैं, खुदावंद की हम बारगाह में हैं, तो हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ करेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे। और हम खुदा के पाक कलाम में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त और उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत से 17 आयत तक तलावत करेंगे। और फिर हम इसी की रोशनी में खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, brothers and sisters in Christ, South Asian Hope Church, may God bless you all. We are really grateful for the new day God added in our life, not only the day, but a week. And we are so grateful that He is always gracious to us, and He always gave us a life, and especially the breath of life. The breath of life is a gift to us from our Heavenly Father. And today again, we are going to meditate upon the book of Romans, chapter 5, verses 12 to 17. The book of Romans, chapter 5, verses 12 to 17. My dear, it's my humble request. If you are at home, please open your Bible with me and read with me. And if you have not your hard copy Bible with you, please open your e-Bible. E-Bible means you have a Bible in your telephones. Please open from there the book of Romans and chapter 5 verses 11 to 17 we are going to read. And we are really grateful for our God, our Heavenly Father, and His Son Jesus Christ and the Holy Spirit. And ask Holy Spirit that the Holy Spirit open your heart and your mind, that you may receive the word of God and keep in your heart and use for your own benefit and share with others, that many may have a salvation and eternal life through our Savior, Lord Jesus Christ. I'm going to read with you the book of Romans chapter 5 verses 12 to 17. रोमियो के ख़त में से 5वें बाब में से उसकी 12वीं आयत से 17 आयत तक मैं आपके साथ तलावत करने जा रहा हूँ। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूँ मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसीह था गुनाह ना किया था। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए, तो खुदावंद का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर ज़रूर ही इफ़रात से नाजिल हुई। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सज़ा का हुक्म था, मगर बथेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत आई, तो उस एक के ज़रिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफ़रात से हासिल करते हैं, वो एक ही शख्स यानी यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी में ज़रूर ही बादशाही करेंगे। I'm going to read in English also. Therefore, as a sin came into the world through one man, and the death through sin,
And so death spread to all men because all men sin. Sin indeed was in the world before the law was given, but sin is not counted where there is no law. Yet the death reigned from Adam to Moses, even over those whose sins were not like the transgressions of Adam, who was a type of the one who was to come. But by the free gift is not like the trespass. For if many died through one man's trespass, much more have the grace of God and the free gift in the grace of that one man, Jesus Christ, abundant for many. And the free gift is not like the effect of that one man's sin. For the judgment following one trespass through condemnation, but by the free gift following many trespasses brings justification. If because of one man's trespass death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in the life through the one man, Jesus Christ. This is the word of the Lord. Amen. अजीज़ों, हम खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, जिसके फजल से आज फिर हम खुदा की हजूरी में हैं। और ये हिस्सा जो मैंने आपके साथ तलावत किया है, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12 to 17, रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त और उसका 5वां बाब 12वीं आयत से 17 आयत तक। और इसको बयान करने के लिए या इसको सीखने के लिए जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसको जो हाइडिंग दी है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। एक स्कॉलर जो है वो इस पैराग्राफ के बारे में जो मैंने आपके सामने तलावत किया है वो ये कहता है, द बेसिस ऑफ आवर जस्टिफिकेशन। यानी जब वो इस पैराग्राफ की बात करता है, when he talk about the paragraph, the Romans chapter 5 verse 12 to 17, he says the basis of our justification। यानी यहाँ पर जो है हम जब इस हिस्से को पढ़ते हैं तो हमारी जो जस्टिफिकेशन है, हमारी जो निजात है, उसके बारे में यहाँ जिक्र जो है वो किया गया है। और अजीज़ों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आज अपने लिए ये बात सीखते हैं कि यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है कि ये वो बेस है जिसके ज़रिए से हम जो है वो निजात को जो है वो पाते हैं। एंड अदर स्कॉलर सेज डेथ थ्रू एडम एंड लाइफ थ्रू क्राइस्ट। तो वो कहता है कि इसमें क्या है, इसमें है कि द डेथ थ्रू एडम, यानी आदम के वसीले से जो है वो मौत आई है, एंड लाइफ थ्रू क्राइस्ट, और मसीह के वसीले से ज़िंदगी जो है वो दुनिया में आई। और एक और स्कॉलर ये कहता है, क्रिश्चियन लिव अ लाइफ ऑफ सिक्योरिटी, यानी एक मसीही जो है वो एक सिक्योरिटी की ज़िंदगी जो है, एक मुहाफ़ज़त की ज़िंदगी जो है वो गुजारता है। और हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में आज अपने लिए इस बात को भी जो है वो सीखने जा रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी है जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। एक और स्कॉलर ये कहता है, प्रोवाइडेड राइचियसनेस कॉन्ट्रास्टेड। तो वो यहाँ ये कहता है कि जो यहाँ पर राइचियसनेस जो है वो बयान की गई है, और यहाँ दो आदमियों का मुआजना जो है वो किया गया है, दो शख्सियतों का मुआजना जो है वो किया गया है। और पहली शख्सियत जो है उसका जिक्र हम खुदावंद के कलाम में जब अपने लिए सीखते हैं वो आदम है, और फिर दूसरा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और आदम को जो है वो आदम अव्वल जो है कहा जाता है, और खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो आदम सानी यानी दूसरा आदम जो है वो कहा जाता है। और फिर एक और स्कॉलर जो है वो ये कहता है, प्रोवाइडेड राइचियसनेस कॉन्ट्रास्टेड एंड अ कॉमन हेरिटेज इन सिन एंड राइचियसनेस। तो यहाँ वो हेरिटेंस की बात करता है, विरासत की बात करता है, और वो कॉमन जो है इन हेरिटेज की बात करता है। यानी आदम के वसीले से जब हम इस हिस्से को आज सीखेंगे तो यहाँ खुदा के कलाम में ये बात बयान की गई है, ये बात बताई गई है कि आदम की वजह से जो है वो मौत जो है वो दुनिया में आई है, और मसीह के वसीले से ज़िंदगी जो है वो दुनिया में आई है। तो मैंने ये बातें आपके साथ शेयर की कि ये जो पैराग्राफ है इसके बारे में स्कॉलर्स जो हैं, कमेंटेटर जो हैं, मुफस्सर जो हैं, तफसीर लिखने वाले जो हैं, उनकी राय जो है वो क्या है। और मैंने बयान किया द बेसिस ऑफ आवर जस्टिफिकेशन, द डेथ थ्रू एडम एंड लाइफ थ्रू क्राइस्ट,
and Christian live a life of security and provided righteousness contrasted and common heritage in sin and righteousness. अजीजों, जब हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो यहाँ 5वें बाब की 12वीं आयत में खुदा के कलाम में हम इस तरह से अपने लिए सीखते हैं। तो यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में रोमियो उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। यानी मौत का सबब जो है वो बयान किया गया है। एंड आई एम गोइंग टू रीड इन इंग्लिश फॉर यू आल्सो। देयरफॉर as sin came into the world through one man and death through sin, and so death spread to all men because all men sin. तमाम आदमियों ने जो है वो क्या किया? गुनाह किया है। अजीजों, हम यहाँ जब इस आयत को देखते हैं तो इस आयत में हम अपने लिए सीखते हैं कि after he had finished creating heaven and earth and everything in them, God saw all that was made and it was a very good. यानी Genesis chapter 1 verse 31 में लिखा है कि जब खुदा ने सब कुछ जो है उसको बना लिया और उसका बनाना जो है ख़त्म हुआ तो खुदा ने सब कुछ देखा कि वो अच्छा है। यानी हम पैदाइश की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 31 की रोशनी में ये बात अपने लिए सीखते हैं कि खुदा ने जो कुछ बनाया था वो जो है अपनी हैसियत में खुदा ने अच्छा बनाया था। क्योंकि जब आप कायनात की तख्लीक की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, तो आप सीखते हैं कि हर चीज़ जो खुदा ने बनाई उसके बाद खुदा कहता था कि ये अच्छी है। और हम यहाँ पर ये बात सीखते हैं कि बट आफ्टर दैट द फर्स्ट मैन एडम सिन, यानी जब पहले आदमी ने, यानी जिसे हम आदम अव्वल उर्दू में कहते हैं, और वो अव्वल आदम अव्वल जो है वो आदम है, जब उसने गुनाह किया, एडम एंड हिज वाइफ एट फ्रूट विच गॉड है कमांडेड देम नॉट टू ईट। अजीजों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि उन्होंने उस फल को जो है वो खा लिया, वो फल जिसके लिए खुदा ने मना किया था, प्रोहिबिटेड फ्रूट जो है उसके बारे में। और बास लोग जो है वो मुख्तलिफ जो है इसकी तशरीह करते हैं, मुख्तलिफ तौर से इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये फल कौन सा था जिसको खाने के बाद आदम और हवा जो है वो नाफरमान हो गए। अजीजों, हम यहाँ एक ही बात सिर्फ सीखते हैं। आई डोंट वांट टू डिस्कस द व्हाट फ्रूट वाज एंड व्हाट फ्रूट वाज नॉट। तो मैं यहाँ ये बात करना चाहता हूँ, मेन थिंग वाज द ओबीडियंस एंड डिसओबीडियंस। द मेन थिंग इज द ओबीडियंस एंड डिसओबीडियंस। यानी उन्हें चाहिए था कि जो कुछ खुदा ने उनको कहा है वो उस पर कायम रहते। और बाइबल मुकद्दस द बुक ऑफ जेनेसिस सेज दैट दे आर नॉट फॉलो द कमांडमेंट ऑफ गॉड, दे बिकेम अ डिसओबीडियंट। अजीजों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जब पैदाइश की किताब और उसके दूसरे बाब की 15 आयत से 17 आयत तक और तीसरे बाब की पहली 3 आयत को सुनते हैं तो वहाँ हमें खुदा के कलाम में से इसका जिक्र जो है वो मिलता है। और अजीजों, मैं आपके साथ पैदाइश की किताब का दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत से 17 आयत तक और फिर तीसरे बाब में से मैं आपके साथ जो है वो तलावत करूँगा। आइए हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से अपने लिए जो है वो पैदाइश की किताब और उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत से 17वीं आयत तक अपने लिए तलावत करते हैं। खुदा के पाक कलाम को मैं अपने लिए और आप सब के लिए खोलने जा रहा हूँ। पैदाइश की किताब का दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत से 17 आयत तक, जहाँ लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदावंद खुदा ने आदमी को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। ये खुदा का हुक्म और ये खुदा का फरमान था आदम के लिए। और हम जब तीसरे बाब को जो है वो देखते हैं तो तीसरे बाब में लिखा है, पहली आयत से शुरू होता है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 1 टू ऑनवर्ड। तो लिखा है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा कि क्या वाकई खुदा ने कहा है
کہ बाग के किसी दरख्त का फल तुम न खाना। औरत ने शाम से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। अजीज़ो, यहाँ पर हम ये बात सीखते हैं कि ये खुदा का हुक्म था और ये खुदा का फरमान था आदम के लिए, जिसे हम आदम अव्वल कहते हैं। और हम यहाँ ये बात सीखते हैं, एट दैट मोमेंट सिन एंटर्ड अ मैनकाइंड, यानी जब आदम और हवा ने नाफरमानी कर दी, खुदा का हुक्म जो है उसको तोड़ दिया, वो ताबेदारी और फरमंबरदारी में नहीं रहे हैं, तो फिर गुनाह जो है वो दुनिया में जो है वो आ गया। और फिर हम सीखते हैं, एंड ever since Adam's time all men have shared in Adam's sin, और आदम के बाद, नाफरमानी के बाद तमाम जो बनी नो इंसान हैं उन्होंने गुनाह को जो है शेयर किया, उन्होंने इनहेरिट जो है वो कर लिया अपने पहले माँ बाप से। बिकॉज एडम एंड ईव आवर फर्स्ट पेरेंट्स। और हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से ये बात सीखते हैं कि उनसे हमने गुनाह जो है उसको इनहेरिट जो है वो कर लिया, यानी गुनाह हमें जो है वो विरसे में यानी विरासत में जो है वो मिल गया। और हम सीखते हैं कि गुनाह की जो मजदूरी है वो मौत है, और फिर जब गुनाह हमने इनहेरिट किया तो गुनाह के साथ साथ हमने फिर मौत जो है, जो गुनाह की सज़ा थी, उसको भी जो है इनहेरिट कर लिया। क्योंकि यहाँ हम रोमियो के ख़त में और उसके 5वें बाब की 12वीं आयत में ये बात सीख रहे थे, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमी में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। सब ने जो है लिखा है कि वो गुनाह किया। और मैंने आपके साथ ये जिक्र किया है कि जब नाफरमानी हुई, नाफरमानी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, और गुनाह के बायस मौत जो है वो दुनिया में आई, और हम सब जो है उस मौत के जो है वो हकदार बन गए, क्योंकि वो हमें विरसे में, हमें विरासत में जो है मिली, हमने उसको इनहेरिट कर लिया। एंड सिंस द पनिशमेंट ऑफ सिन इज डेथ, in this way death came to all men, that death is both physical and spiritual। और जब हम इस मौत की बात करते हैं, जब हम इस डेथ की बात करते हैं, तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। इसमें मेरे अजीज़ों दोनों चीज़ें हैं, इसमें स्पिरिचुअल डेथ भी है और इसमें जो है वो फिजिकल डेथ भी है। और अजीज़ों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात जो है वो अपने लिए सीखते हैं कि गुनाह जो है अब वो बनी नो इंसान की नेचर में है। द सिन इज़ इन हिज नेचर, कैसे ह्यूमन बीइंग जो है, क्योंकि बाज़ दफ़ा सवाल पैदा होता है कि क्या बच्चे भी गुनाह करते हैं, लेकिन हम यहाँ ये बात सीखते हैं कि बच्चे गुनाह नहीं करते, लेकिन गुनाह करने वाली नेचर जो है, गुनाह करने वाली फितरत उनके अंदर भी मौजूद होती है, और गुनाह करने वाला जो सीड है वो उनके अंदर मौजूद होता है। और जिस तरह वो बढ़ते जाते हैं, इसी तरह गुनाह करने वाली जो नेचर है, गुनाह करने वाली जो फितरत है, वो भी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती चली जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो भी जो है गुनाह में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। और जब हम 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह महसूस नहीं होता। तो और इंग्लिश में खुदा के कलाम में लिखा है, sin indeed was in the world before the law was given, but sin is not where there is no law, यानी but the sin is not counted where there is no law। और हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात अपने लिए सीखते हैं कि जहाँ पर ला नहीं है वहाँ गुनाह जो है वो काउंटेड नहीं होता है। और अजीज़ों, हम यहाँ पर सीखते हैं, फ्रॉम एडम्स टाइम अप टू द टाइम ऑफ मोसेस द रिटन लॉ डिड नॉट एग्जिस्ट, यानी आदम से लेकर
جب ہم موسیٰ تک آتے ہیں تو ہمیں ایک بات جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ گناہ جو ہے وہ موجود نہیں تھا، اور پھر ہم سیکھتے ہیں یعنی گناہ دنیا میں آ چکا تھا لیکن ریٹن لا جو ہے وہ نہیں تھا، اور جہاں ریٹن لا نہیں ہے وہاں پر ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ وہاں پر سزا بھی نہیں ہے، یعنی گناہ کاؤنٹڈ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم ایک بات سیکھتے ہیں کہ خدا ہمیشہ گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ آپ اس بات پر نہ غور کرنا کہ اگر یہاں یہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا گناہ سے نفرت نہیں کرتا ہے۔ خدا ہمیشہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سیکھتے ہیں کہ نوح کے زمانے میں کیا ہوا۔ نوح کے زمانے کو جو ہے کیوں جو ہے وہ سزا ملی، اور وہاں بائبل مقدس میں جب آپ پڑھتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا انسان کو زمین پر بنانے سے معلول ہوا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ طوفان کی وجہ سے سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور نوح اور اس کا گھرانہ اور وہ جانور جو اس کے ساتھ کشتی میں داخل ہو چکے تھے ان کے سوار اور کوئی نہ بچا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور حقیقت بھی جو ہے وہ اپنے لیے سیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے جو ہے وہ سدوم اور عمورہ کو جو ہے خدا نے خاک کو سیاہ کیا ان کے گناہ کی وجہ سے۔ اور ہم یہاں خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ خدا پاک ہے، اور خدا ہمیشہ جو ہے وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، کراہیت جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور ہم یہاں خدا کے کلام میں آپ جو ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا ہمیشہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، چاہے لا اس وقت ریٹن لا نہیں تھا لیکن مورل لا، دا نیچر لا جو ہے وہ یقیناً موجود تھا، اور خدا کا حکم جو ہے وہ موجود تھا، کیونکہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ جو آدم کو کہا گیا تھا کہ تو یہ کر اور یہ نہ کر، وہ اپنی حیثیت میں ایک مکمل شریعت تھی، ایک لا تھا جو آدم کو دیا گیا تھا، کیونکہ آدم اس وقت اتنا ہی جان سکتا تھا اور اتنا ہی۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو جو ہے آئین اور قوانین اور شریعت جو ہے وہ دیتا رہا، کیونکہ عبرانیوں کے خط میں ہم یہ بات جو ہے وہ بڑے واضح الفاظ میں جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ اور میں عبرانیوں کے خط کے پہلے باب میں سے چند آیات آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، فرام دا بک آف ہیبروز۔ اور یہاں خداوند کے کلام مقدس میں سے جب ہم عبرانیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط جو ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی آیت سے تیسری آیت تک میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، اور اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر وہ سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ اور یہاں لفظ حصہ بحصہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور I'm going to read in English also. In many and various ways, God spoke of the old to our fathers by the prophets, but in these last days he has spoken to us by a Son, whom he appointed to the heir of all things, through whom also he created the world. He reflected the glory of God and bears the very stamp of his nature, upholding the universe by his word of power. When he had made purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. تو ہم یہاں یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا حصہ بحصہ اپنے لوگوں سے باتیں کرتا رہا، اور اس کا مطلب یہ کہ خدا نے حصہ بحصہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے کلام کی روشنی میں سیکھتے ہیں کہ اس نے باتیں کی ہیں۔ عزیزو، جب ہم رومیوں کے خط میں 15ویں آیت کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو رومیوں کے خط کے 5ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، اور بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی۔ اور انگلش میں لکھا ہے، بٹ دا فری گفٹ از ناٹ لائک دا ٹریسپیس، فار if a many died through a one man's trespass, much more have the grace of God and the free gift in the grace of
that one man Jesus Christ abounded for many. So हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जो है वो 15वीं आयत में जो है वो अपने लिए इस बात को सीखते हैं कि यहाँ पर लिखा है which is given by the grace of the one man Jesus Christ. यानी जब हम सीखते हैं खुदा के फजल की बात सीखते हैं, फिर कहते हैं but the gift is not like the trespass. For Adam came death, यानी आदम के वसीले से क्या आई है? मौत आई है. और मसीह के वसीले से क्या आई है? ज़िंदगी जो है वो आई है. और अजीज़ो हम यहाँ खुदा के कलाम में से सीखते हैं together with the gift of righteousness come eternal life, salvation, and this gift will overflow to the many that is to all believers. और हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से अपने लिए जिस बात को सीखते हैं वो बात ये है कि आदम के वसीले से मौत आई है और बहुत मौत जो है वो सारी लिखा दुनिया में जो है वो फैल गई है और सब लोग जो थे उन्होंने मौत को इनहेरिट जो है वो कर लिया क्योंकि मौत गुनाह की वजह से है और लोगों ने गुनाह को इनहेरिट किया और उसके बाद उसकी सज़ा मौत को. लेकिन मसीह खुदावंद के वसीले से हम यहाँ ये बात सीख रहे हैं कि हमें ज़िंदगी मिली है, इटर्नल लाइफ, हमेशा की ज़िंदगी, और सैल्वेशन. और हम सीखते हैं जितने लोग भी मसीह खुदावंद को कबूल करेंगे और अपनी ज़िंदगियां खुदावंद यीशु मसीह को देंगे, वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनेंगे. अजीज़ो हम यहाँ ये बात सीख चुके हैं कि शरीयत से जो है वो ज़िंदगी नहीं मिलती है, शरीयत तो गुनाह की पहचान है, लेकिन मसीह यीशु जिसके वसीले से हम पर फजल हुआ है और मसीह खुदावंद बज़ाते खुद खुदा के कलाम में ये बात बयान की गई है कि वो खुदा की बख्शिश है, वो खुदा की रहमत है, खुदा का फजल है. और जितने लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं वो उसके वसीले से हमेशा की ज़िंदगी और फिर वो जो है वो निजात यानी सैल्वेशन जो है वो हासिल करेंगे. और हम जब 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ 16वीं आयत में खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सज़ा का हुक्म था, मगर बथेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे. Verse 16, and the free gift is not like the effected of that one man's sin. For the judgment following one trespass brought condemnation, but the free gift following many trespasses bring justification. तो हम यहाँ 16वीं आयत में खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि खुदा के कलाम में हमारे लिए यह है कि sin came a judgment. क्या वो सिन जो है? जजमेंट. क्यों? कि आदम की वजह से गुनाह जो है आया, एक आदमी के वसीले से, आदम के वसीले से. और दैट इज़ आफ्टर मैनी अदर मैन हैड सिन, और बहुत सारे आदमी जो थे उन्होंने जो है ये बात हम सीखते हैं कि गुनाह जो है वो किया है. दिस इज़ आफ्टर मैनी अदर मैन हैड सिन द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस वाज गिवन बाय द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट. जब लोग जो हैं वो गुनाह में चले गए, वो गुनाह में जो है अपनी ज़िंदगी जो है उन्होंने गुजारना जो है वो शुरू कर दी, गुनाह के मुर्तकब हो गए, तो फिर लिखा कि खुदा का फजल जो है वो जाहिर हुआ, क्योंकि इंसान अपने आप से गुनाहों से मुआफ़ी और रिहाई हासिल नहीं कर सकता था. और अजीज़ो हम यहाँ पर सीखते हैं दो बातें हैं, एक है ओबीडियंस और एक है डिसओबीडियंस. यानी आदम की वजह से डिसओबीडियंस जो है वो दुनिया में आई और मसीह के वसीले से ओबीडियंस, यानी मसीह खुदा आखिर तक जो है वो जो है ओबीडियंट रहा. और अगर मैं और आप ज़िंदगी को पाना चाहते हैं, यानी इटर्नल लाइफ, हमेशा की ज़िंदगी को पाना चाहते हैं, अगर मैं और आप निजात पाना चाहते हैं, अगर मैं और आप रिहाई और मखलसी पाना चाहते हैं, तो वी हैव टू बिकम ओबीडियंट लाइक जीसस क्राइस्ट वाज. खुदावंद यीशु मसीह जान देने तक वफादार रहा है और उसने मुझे और आपसे भी कहा है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा. इफ़ यू वांट टू द क्राउन ऑफ लाइफ देन यू मस्ट हैव टू बिकम ओबीडियंस टू गॉड. और हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में आखिर में ये बात जो है वो सीख रहे हैं, दिस लाइफ हैज़ कम टू अस थ्रू गॉड्स अबंडेंट प्रोविजन of grace and through his provision of the gift of righteousness. तो हम यहाँ पर सीखते हैं कि ये लाइफ
जिसे हम हमेशा की ज़िंदगी कहते हैं, ये कसरत से जो है वो दुनिया में आई। और जब मैं लफ्ज़ कसरत यानी अबंडेंट इस्तेमाल करता हूँ तो मसीह खुदावंद ने यूहन्ना की इंजील में कहा था कि मैं उन्हें ज़िंदगी देने के लिए आया हूँ और मैं कसरत की ज़िंदगी जो है वो देने के लिए आया हूँ। और ये खुदा का इरादा था कि बनी नौ इंसान जो है वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हो। और खुदा का वो जो अज़ली इरादा था वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो है वो पूरा हुआ है। और हम खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ और उसकी सताइश करते हैं कि मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी और निजात और जस्टिफिकेशन और अडॉप्शन, खुदा ने हमें अडॉप्ट कर लिया, यानी हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप हमेशा खुदा के ओबीडियंट रहें, उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह ने जो हुक्म दिए हैं उनकी ताबेदारी और फरमाबरदारी करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो फिर क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। अगर हम उसे खुदावंद कहते हैं, हम उसे अपना बादशाह कहते हैं, तो फिर अजीज़ों मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप अपनी ज़िंदगियाँ उसको दें, उसकी ताबेदारी और उसकी फरमाबरदारी में रहें, ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने, आप निजात के वारिस बने और आप जो है मसीह के वसीले से खुदा के घराने के लोग बने रहें और आप जो है उस अजर को पाएं जिसको देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आ रहा है। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। आपकी सलामती हो।